Hello student. In this video lecture we want to see haloarenes. What is mean by haloarenes? तो इसमें देखना है अपने को डेफिनेशन ऑफ haloarene, उसके बाद में nomenclature, how are they nomenclated, then methods of preparation and then properties. These are the factors, these are the points we want to study in the chapter haloarenes. अब haloarenes क्या है? जैसा अपन ने हेलो अल्केन देखा, हेलो अल्किन, हेलो अल्काइन, सिमिलरली हेलो अरेन्स. तो यहाँ पर हेलो अल्केन on the basis of a skeleton, the halogen derivative are classified into four types. One is called alkene, next one is called haloalkyne और next one is called haloarenes. तो यहाँ पर halogen atom is attached to that carbon atom which contain carbon-carbon single bond. Here halogen atom is attached to that carbon atom which contain carbon-carbon double bond. Here halogen atom is attached to that carbon atom which contain triple bond. And if the benzene ring is directly attached, halogen atom is directly attached to the benzene ring, these are called haloarenes. या फिर they are called aryl halides. Common name में aryl halides. तो what is mean by haloarenes? तो पहला पॉइंट देखेंगे अपन ने डेफिनेशन. तो व्हाट इज मीन बाय haloarenes? The compounds which are obtained by replacement of one or more hydrogen atoms from benzene ring. These are called haloarenes. उनको क्या बोलेंगे अपन? haloarenes. उसके बाद में ये होगा डेफिनेशन के बाद में nomenclature. Nomenclature में again there are two systems. The compound which are obtained by replacement of one or more hydrogen atoms from a benzene ring by halogen atoms, incomplete रह गया था, by halogen atoms, that is called haloarenes. One or more hydrogen atom from a benzene ring by means of a halogen atoms are called haloarenes या फिर aryl halides. Nomenclature में पहला that is called a common system और second one is called a IUPAC system. One is called common system and another one is called a IUPAC system. In common system they are called aryl halides. They are called aryl halides और IUPAC में they are called haloarenes. लेकिन जनरली अब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है. haloarenes में जैसा ये एरोमेटिक कंपाउंड है, तो एरोमेटिक कंपाउंड में जनरली these are used, haloarenes the word is used as a common as well as IUPAC सिस्टम में. ये अपन जनरली यूज करते हैं IUPAC सिस्टम में. तो ये होगा नॉमेनक्लेचर. अब कॉमन सिस्टम और IUPAC में लिखना है तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द positions in benzene ring. Suppose here halogen atom is attached to here X and A. ये हो गया अपना halogen atom. Here halogen atom is attached. तो जिस कार्बन एटम के पास हैलोजन एटम अटैच है उसको एक नंबर देने का, देन क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज नंबर देने का. ये हो गया क्लॉकवाइज 1, ये हो गया 2, 3, 4, 5 और 6. क्लियर? देन द पोजिशंस
2 and 6 are called, that is the arthro position. The position 2 and 6 एक में आमने सामने के, these are called a arthro position in common system denoted by letter small o. Then next one is the positions, that is 3 and 5 are called meta position, denoted by letter small m. तो कोई भी ये जो आमने सामने की होगी, और उसके बाद में the position 4 is called para position. इसको क्या बोलेंगे अपन? para position in a common system में. तो कॉमन सिस्टम में नाम क्या होगी इसके? आर्थ्रो, मेटा और प्यारा. क्लियर? तो ये पोजीशन 2 और ये 6, दैट इज कॉल्ड आर्थ्रो पोजीशन. 3 and 5 called meta position, and the position 4 is called para position, denoted by small letter O, M और P, O, M, P. या फिर कोई भी नाम ले सकते अपन याद रखने के लिए. ओम प्रभु, क्या लिख सकते? ओम प्रभु, या फिर कोई ओम प्रकाश भी बोल सकते. तो ये वर्ड याद रखने का, ओम प्रभु. कौन सा वर्ड? ओम प्रभु, यानी आर्थ्रो, मेटा और प्यारा. 2 क्लियर? ये हो गया 3, ये हो गया 4, उसके बाद में उल्टा फिर से 4, 5 और 6. तो पोजीशन 4 इज कॉल्ड पैरा, पोजीशन M 3 and 5, 2 और 6 को क्या बोलेंगे अपन? आर्थ्रो. तो ये वर्ड याद रखने का, कोई भी ओम प्रकाश, ओम प्रभु, जो भी है OMP. तो ये हो गया पोजीशन अकॉर्डिंग टू द कॉमन सिस्टम. अब मोनो सब्स्टिट्यूटेड अगर है तो नो प्रॉब्लम, डायरेक्ट अपन उसका नाम लिख सकते हैं. अकॉर्डिंग टू द कॉमन सिस्टम में देखा अपन, दे आर कॉल्ड अरिल हैलाइड, और IUPAC में दे आर कॉल्ड हैलो ऑरेंज. अब इसमें और एक याद रखने का, रिमेम्बर इट, द स्केलेटन याद रखने का. जैसा अपन अल्केन में याद रखते, दैट इज CH4 इज कॉल्ड मीथेन. लेकिन इसका अगर एक हाइड्रोजन एटम निकाल लिया तो दिस ग्रुप इज कॉल्ड मिथिल ग्रुप. अगर एक हाइड्रोजन एटम फिर से निकाल लिया, डाइवैलेंट CH2, तो दीज आर कॉल्ड, इट इज कॉल्ड मिथिलीन ग्रुप. इसको क्या बोलेंगे अपन? मिथिलीन ग्रुप. इसको बोलेंगे अपन मिथिल ग्रुप. स्मॉल एम लिखता हूं. तो ये हो गया मीथेन, मिथिल, मिथिलीन. वैसे सिमिलरली दैट इज कॉल्ड इथेन, इट इज कॉल्ड इथिल, एंड इट इज कॉल्ड इथिलीन. इसको क्या बोलेंगे अपन? इथिलीन, लाइक दैट. तो ये ऐसे ग्रुप हो गए, मीथेन, मिथिल और मिथिलीन. तो ये हो गया अबाउट द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में. क्लियर? लेकिन अगर सपोज बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन रिंग अगर है तो क्या लिखोगे? जैसा अगर बेंजीन रिंग है ओनली, क्लियर, उसकी एक वैलेंसी वैकेंट है, इसको वैकेंट बोलेंगे, नॉट ए मिथिल ग्रुप. दिस वैलेंस इज वैकेंट, तो क्या हो जाएगा? या फिर इसको बोलेंगे अपन C6H5, क्योंकि बेंजीन क्या हो गया? C6H6. क्लियर? और इट इज डिनोटेड बाय लेटर AR, या फिर और इट इज डिनोटेड लेटर बाय 5. जैसा है अल्किल ग्रुप है, इट इज डिनोटेड बाय लेटर R. तो ये जो फिनिल ग्रुप है C6H5, इट इज डिनोटेड बाय AR, या फिर 5 भी बोलते इसको. क्लियर? तो जैसा इसमें देखा अपन ने ABC, तो यहां पर ये होगा ये. अब दिस ग्रुप इज कॉल्ड फिनिल ग्रुप, इट इज कॉल्ड फिनिल ग्रुप. इसको क्या बोलेंगे अपन? फिनिल ग्रुप. C6H5 ग्रुप इज कॉल्ड फिनिल ग्रुप.
अगर यहां पर मैं CH3 लगाता हूं तो इट इज कॉल्ड मेथिल बेंजीन, इट इज हाइड्रोकार्बन मेथिल बेंजीन, या फिर इट इज आल्सो कॉल्ड टॉलिन, इसका नाम क्या जाएगा टॉलिन, ये याद रखने का। लेकिन अगर मैं एक हाइड्रोजन एटम यहां से कम करता हूं, अगर मैं एक हाइड्रोजन एटम यहां से कम करता हूं CH2, तो एक वैलेंसी क्या होगी, ये वैकेंट होगी। क्लियर? तो दिस ग्रुप इज कॉल्ड बेंजील ग्रुप, इसको क्या बोलेंगे अपन, बेंजील ग्रुप। यानी फार्मूला में लिखेंगे C6H5 CH2 और आगे एक वैलेंसी वैकेंट, दिस ग्रुप इज कॉल्ड बेंजील ग्रुप, इसको क्या बोलेंगे अपन, बेंजील ग्रुप। जैसा फॉर एग्जाम्पल यही बताता हूं मैं, एग्जाम्पल दैट इज हियर, अगर यहां पर समझो CH2 है, उसको Cl अगर लगा दिए तो दिस ग्रुप इज कॉल्ड बेंजीन, एंड आगे लिखेंगे अपन क्लोराइड, इट इज कॉल्ड बेंजील क्लोराइड, कॉमन सिस्टम में। क्लियर? अभी कॉमन सिस्टम देख रहे हैं। नाउ अगर फिर से एक हाइड्रोजन एटम मैं निकालता हूं, क्लियर, तो ये दो वैलेंसी वैकेंट, यहां पर एक ही वैलेंसी वैकेंट, कहीं पर भी ले सकते, कोई भी एनी वन पोजिशन। क्लियर? यहां पर ऊपर भी लिख सकता हूं मैं, नीचे भी लिख सकता हूं, नो प्रॉब्लम। क्लियर? तो दिस ग्रुप इज कॉल्ड बेंजल ग्रुप, इसको क्या बोलते, बेंजल ग्रुप, इसको बोलेंगे अपन बेंजल ग्रुप। तो C6H5 CH, ये कार्बन की दो वैलेंसी वैकेंट लाइक दैट, और एक बचा यहां पर H, तो दिस ग्रुप इज कॉल्ड बेंजल ग्रुप। जैसा फॉर एग्जांपल मैं यहां पर CH लिखता हूं, क्लियर, यहां पर Cl2 लिखता हूं, और बॉन्डिंग फॉर्म में अगर लिखता हूं मैं तो यहां पर 1 2 3, तो इट इज कॉल्ड बेंजल क्लोराइड, नॉट डाइक्लोराइड, इट इज कॉल्ड बेंजल क्लोराइड, इसका नाम आ जाएगा बेंजल क्लोराइड। या फिर दूसरा CH लिखता हूं यहां पर, इसको डबल बॉन्ड O लगाता हूं, क्लियर, तो इट इज कॉल्ड बेंजाल्डिहाइड, तो दिस ग्रुप इज कॉल्ड बेंजल, तो इट इज कॉल्ड बेंजाल्डिहाइड लाइक दैट। क्लियर? अब उसके बाद में एक और हाइड्रोजन एटम बचा है, वो निकाल लेंगे अपन, ये हो गया लाइक, तो इसकी तीनों वैलेंसी वैकेंट। क्लियर? दिस ग्रुप इज कॉल्ड बेंजो, द नेम ऑफ दिस ग्रुप इज बेंजो। क्या लिखोगे, C6H5 तीन वैलेंसी वैकेंट इसकी, दिस ग्रुप इज कॉल्ड बेंजो। क्लियर? तो इसके लिए एग्जांपल लाइक दैट, AC एक Cl Cl Cl, तो इट इज कॉल्ड बेंजोक्लोराइड, इट इज कॉल्ड बेंजोक्लोराइड। या फिर अनदर वन, C हो गया, इसके एक वैलेंसी को, दो वैलेंसी को अपन ने O लगा दिया, और ये हो गया। क्लियर? या फिर लाइक दैट, यहां पर भी अपन ये बेंजीन ग्रुप लगा दिया, इट इज कॉल्ड, ये हो गया फिनोन, और द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज बेंजोफिनोन, इसको क्या बोलेंगे अपन, बेंजो। क्लियर? तो इसके एक वैलेंसी, दो वैलेंसी, और ये तीसरी वैलेंसी, सो दिस ग्रुप इज कॉल्ड, सॉरी, ये कार्बन ऑक्सीजन छोड़ के, तो ये जो ग्रुप बचा है, इट इज कॉल्ड बेंजो ग्रुप, इसको क्या बोलेंगे अपन,
बेंजो ग्रुप। क्लियर? तो ये ऐसे नाम हो गए इनके। अब चौथा जो मैंने बताया था पांचवा, इसमें दैट इज द C6H5, इसकी एक वैलेंसी वैकेंट। क्लियर? दिस ग्रुप इज कॉल्ड ए फिनिल ग्रुप। C6H5 एक वैलेंसी वैकेंट, दैट इज कॉल्ड ए फिनिल ग्रुप। क्लियर? तो एग्जाम्पल लाइक दैट, तो एक आधा समझो एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं यहां पर, दैट इज CH3O और आगे बेंजीन ग्रुप लगाता हूं मैं। क्लियर? तो ये होगा मिथिल, ये होगा फिनिल और ये ईथर। तो इसका नाम हो गया मेथिल फेनिल ईथर। क्लियर? दूसरा एग्जाम्पल ये हो गया फेनिल, और यहां पर मैं OH लगाता हूं। इसका फॉर्मूला C6H5, OH यानी OL, तो इसका नाम हो गया फेनिल और यहां पर आ जाएगा OL, फेनॉल। क्लियर? तो ये हो गए इसके नाम, ख्याल में रखने का। तो C6H5 इज कॉल्ड फेनिल ग्रुप, C6H5CH2 बेंजील, CH बेंजल, और दिस ग्रुप इज कॉल्ड बेंजो। इसको क्या बोलेंगे अपन? बेंजो। क्लियर? तो ये हो गया अबाउट द कॉमन सिस्टम में इसके नाम, ये ग्रुप के नाम हो गए। क्लियर? अब एक्चुअल नाम देखेंगे अपन कैसे लिखेंगे। तो अब मोनो सब्स्टिट्यूटेड में तो नो प्रॉब्लम। अगर मोनो सब्स्टिट्यूटेड है तो नो प्रॉब्लम, डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू द कॉमन सिस्टम, दैट इज कॉल्ड अरिल हैलाइड। अकॉर्डिंग टू द IUPAC दे आर कॉल्ड हैलो अरिन्स। जैसा फॉर एग्जाम्पल दिस, यहां पर CH2Cl लगाता हूं, तो दिस ग्रुप इज कॉल्ड बेंजील, इट इज कॉल्ड ए बेंजील क्लोराइड। क्लियर? यहां पर हैलोअरिन्स, इसी को CH2Cl लगाता हूं मैं। क्लियर? तो ये बेंजील क्लोराइड। अब इसका IUPAC नेम कैसे लेंगे, ये चेन लेंगे अपन, ये होगा क्लोरोमीथेन, और इसको फेनिल ग्रुप, दिस ग्रुप इज कॉल्ड फेनिल ग्रुप। तो ये होगा फेनिल और आगे लगाएंगे क्लोरोमीथेन, लेकिन अल्फाबेटिकली लिखते हैं अपन। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन एक कार्बन एटम की, सो पेरेंट अल्केन मीथेन Cl, यानी हो गया क्लोरो, और ये हो गया फेनिल। अल्फाबेटिकली दैट इज द क्लोरो फेनिल मीथेन। क्या बोलेंगे? क्लोरो फेनिल मीथेन यहां पर। या फिर अनदर एग्जांपल लाइक दैट, यहां पर Cl लगाते हो तो जनरली इट इज नॉट कॉल्ड फेनिल क्लोराइड। फेनिल क्लोराइड ऐसा अपन बोल सकते, लेकिन इट इज नॉट ए करेक्ट, कोई बुक में ऐसा फेनिल क्लोराइड नहीं दिया है। तो इसके लिए अपन IUPAC नेम लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड ए क्लोरोबेंजीन। इसको क्या नाम लिखते हैं अपन? क्लोरोबेंजीन। क्लियर? तो IUPAC में इसका नाम क्या आ जाएगा? हैलोअरिन्स या फिर हैलोबेंजीन। मोनो सब्स्टिट्यूटेड हो गए। अब सेकंड डाई सब्स्टिट्यूटेड अगर है, डाई सब्स्टिट्यूटेड अगर है तो अकॉर्डिंग टू द कॉमन सिस्टम, क्लियर? अगर पोजीशन 1-2 है तो उसको आर्थ्रो बोलेंगे, 1-3 है तो उसको मेटा बोलेंगे, और 1-4 अगर है तो उसको अपन प्यारा बोलेंगे। क्लियर? और यहां पर IUPAC में दैट इज कॉल्ड 1-2 डायहैलोअरीन या फिर बेंजीन, यार 1-3 डायहैलोअरीन और बेंजीन,
या फिर 1,4 डायहेलोअरीन और ए बेंजीन। तो अकॉर्डिंग टू द IUPAC सिस्टम द न्यूमेरिकल्स आर यूज्ड, नंबर्स आर यूज्ड। यहां पर क्या यूज करते, नंबर्स यूज करते, पोजीशन ऑफ दैट हैलोजन एटम। यहां पर द पोजीशन ऑफ हैलोजन एटम इंडिकेटेड बाय आर्थ्रो, मेटा और प्यारा। जैसा फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक Cl है, यहां पर Cl है, यहां पर भी Cl है और एक Cl यहां है, एक Cl यहां सॉरी नीचे है। तो इसके पोजीशन लिखने का लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू राइट या फिर क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज होगा 1 और 2। इधर से लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 लोएस्ट नहीं आएगी, लोएस्ट 1 2 तो 2 यानी आर्थ्रो, तो इट इज कॉल्ड आर्थ्रो डाइक्लोरोबेंजीन। डाइक्लोराइड नहीं बोलते इसमें, ख्याल में रखने का। एरोमेटिक में डाइक्लोराइड वर्ड नहीं आता है, एलिफेटिक में आता है। यहां पर 1 2 3 3 को बोलेंगे अपन मेटा, इट इज कॉल्ड मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। 1 2 3 4 इट इज कॉल्ड प्यारा डाइक्लोरोबेंजीन। लेकिन वही अगर IUPAC में लिखना है तो इट इज कॉल्ड 1,2 लिखने का और बाद में हाइफेन 1,2 डैश डाइक्लोरोबेंजीन। यहां पर 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन। Here 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। क्लियर? अगर सपोज द डिफरेंट हैलोजन एटम्स आर अटैच, एक समझो Cl है, एक समझो Br है, तो राइट देम अल्फाबेटिकली। तो इसकी पोजीशन 1 है, इसकी पोजीशन 2 है। क्लियर? ये अपन ने ऐसा लिखा, लेकिन अल्फाबेटिकली अगर लिखते हैं तो दिस इज द रॉन्ग पोजीशन। क्या आ जाएगी पोजीशन? Br पहले आ जाएगा, तो Br को 1 नंबर देंगे और इसको 2 नंबर देंगे। तो इट्स कॉमन नेम आर्थ्रोक्लोरो ब्रोमोबेंजीन। क्लियर? ऐसा अपन लिख सकते हैं, लेकिन जनरली नहीं लिखते, आर्थ्रोक्लोरो ब्रोमोबेंजीन। क्लियर? तो ये अपने पोजीशन के लिए, कंफ्यूजन के लिए, लेकिन जनरली ऐसा नहीं लिखते। तो अगर ऐसा रहा तो दे आर नॉमेनक्लेटेड बाय IUPAC सिस्टम से। तो क्या आ जाएगा फिर यहां पर 1 ब्रोमो 2 क्लोरो और ओरिजिनल बेंजीन। 1 ब्रोमो 2 क्लोरो बेंजीन। क्लियर? अब उसके बाद में तीसरा पॉइंट दैट इज ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। अगर 3 हैलोजन एटम अटैच है तो इफ द 3 हैलोजन एटम्स आर अटैच, 1 3 और 5, 1 2 3 4 5 और 6, तो कॉमन सिस्टम में 1 3 5 को बोलते सिमेट्रिकल अकॉर्डिंग टू द कॉमन सिस्टम। तो इसका नाम आ जाएगा दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिकल ट्राइक्लोरोबेंजीन। क्या नाम आ जाएगा? सिमेट्रिकल ट्राइक्लोरोबेंजीन। अगर एक Cl यहां, एक Cl यहां है तो इट इज नॉट नॉमेनक्लेटेड बाय द कॉमन सिस्टम, क्योंकि यहां पर पोजीशन 1 2 3 और 4 आगे लोएस्ट। इधर से लिया तो ज्यादा आएंगे, अपने को लोएस्ट सम करना है। क्लियर? तो इसका फिर IUPAC नेम लिखेंगे अपन, दैट इज यार IUPAC नेम क्या आ जाएगा फिर 1 3 और
5, इट्स नेम इज 1,3,5, उसके बाद में डैश ट्राइक्लोरोबेंजीन। क्लियर? यहां पर लिखेंगे 1 2 4 ट्राइक्लोरोबेंजीन, 1 2 4 ट्राइक्लोरोबेंजीन, कैपिटल स्मॉल कोई भी अपन ले सकते हैं अपने हिसाब से। क्लियर? ऐसा जरूरी नहीं है कि ये कैपिटल ही लिखना चाहिए करके। क्लियर? लेकिन बाकी अदर वर्ड सेपरेट नहीं लिखने का, एक ही चेन में, एक ही विदाउट एनी गैप। क्लियर? तो ये हो गया अबाउट द नॉमेनक्लेचर। मोनो सब्स्टिट्यूटेड, एक हैलोजन एटम है तो, 2 हैलोजन एटम है तो, 3 हैलोजन एटम है तो, हर एक की पोजीशन अपन ने बता दिया। तो इसमें जो डाई सब्स्टिट्यूटेड है इट इज इंपॉर्टेंट। क्लियर? पोजीशन 1 2 है तो आर्थ्रो डाइक्लोरो, 1 3 अगर है तो मेटा डाइक्लोरो, और 1 4 है तो प्यारा डाइक्लोरो, 1 2 1 3 और 1 4 के लिए। क्लियर? और ट्राई सब्स्टिट्यूट में एक ही याद रखने का, अगर 1 3 5 है तो दिस टर्म इज कॉल्ड सिमेट्रिकल, इसको सिमेट्रिकल बोल सकते हैं अपन। क्लियर? तो ये हो गया अबाउट। अब उसके बाद में अगेन सम कंपाउंड्स, कुछ और एग्जांपल लेते लाइक दैट CH3Cl। क्लियर? तो उनके जो है नेम है ऑलरेडी गिवन, वो नेम पर से भी अपन लिख सकते हैं। तो ये होगा मेथिल बेंजीन, दिस मेथिल बेंजीन इज कॉल्ड टॉलिन, इसको क्या बोलते हैं अपन? टॉलिन। तो क्या आ जाएगा फिर? अब एक कॉमन सिस्टम में तो जनरली नहीं लिख पाएंगे अपन, IUPAC में भी लिखना पड़ेगा। तो हैलोजन को पहला नंबर, इसको 2 नंबर। क्लियर? तो इसका नाम आ जाएगा 1 क्लोरो अल्फाबेटिकली 2 मिथिल डैश देके बेंजीन, 1 क्लोरो 2 मिथिल बेंजीन, या फिर दिस ग्रुप इज कॉल्ड टोलिन, सॉरी दिस कंपाउंड इज कॉल्ड टोलिन। तो इसका नाम क्या आ जाएगा फिर? 1 क्लोरो टोलिन। क्या आ जाएगा? 1 क्लोरो टोलिन। तो एरोमेटिक कंपाउंड में मोर देन 1 नेम कैन बी रिटन, 1 2 3 4 नाम भी अपन लिख सकते हैं इसके। क्लियर? तो ऐसे अब हर एक के बहुत सारे कंपाउंड है, अपन इसके नाम लिखते आना चाहिए अपने को लाइक दैट। यहां पर एक CH3 है, यहां पर I है, यहां पर C2H5 है, बेंजीन रिंग है, कैन नॉट बी नॉमेनक्लेटेड बाय कॉमन सिस्टम। अब यहां पर नंबरिंग कैसे देने का? तो नंबरिंग लोएस्ट सम लेने का। एक है मिथिल, इथिल और आयोडो, मिथिल इथिल आयोडो अल्फाबेटिकली लिखने का। तो क्या आ जाएगा? पहले इथिल लिखोगे, डैश देके बीच में नंबर, बाद में आयोडो आ जाएगा, बाद में मिथिल आ जाएगा, और बाद में फिर द वर्ड बेंजीन। अब उसके नंबरिंग लिखना है अपने को। इधर से नंबर दिए 1 2 3 4, तो यहां पर नंबर लिखा अपन ने 1, यहां पर नंबर लिखा 4, और यहां पर नंबर लिखा अपन ने 3। तो 1 + 4 + 3, 5 और 3 यानी 8 आ गई टोटल। उल्टे साइड से नंबर देते हैं, 1 2 3 4, और ये हो गया 5। क्लियर? तो ये हो गया 1 2 3 4 5 और ये 6। तो मिथिल को नंबर तो 1 आ गया, इसको नंबर 4 आ गया, 1 + 4 5 और +5 यानी कितने हो गए? ये 10 हो गए। तो इट इज इनकरेक्ट। तो ये अपना लोएस्ट है, दिस इज द